All right, ladies and gentlemen. So today we are here to discuss Sade Sati. When I was learning Jyotish, you know, I was very excited to learn about this topic, Sade Sati. I saw many videos on YouTube. I read so many books. And you know what? It was always said that Sade Sati is something which is very, very severe. It is deadly. It burns things. It finishes off things. It creates a lot of problems in the life. That was the first impression. And whenever you talk to someone, even today, when I do some consultations and I tell people, hey, you are in Sadasati, the native is terrified. They have that feeling of fear. Oh God, Sadasati aa gayi, you know and that means that you are in trouble for next 7.5 years. Sade Sati is basically 7.5 years. Sade means half and Sati means seven. So 7.5 year of Shani's transit over your moon is known as Sade Sati, right? So wherever your moon, in whichever Rashi your moon is, if Saturn start transiting one house before the moon and on the moon and then one house after the moon is known as Sadasati. Why? Because Saturn takes 2.5 years approximately, right, to transit in one Rashi. So three Rashis. Which three Rashis? Rashi on which you have moon, and then a Rashi prior to the moon and the Rashi next to the moon. So 2.5, 2.5, 2.5, 7.5 years is known as Sade Sati. You see, as a student, when I was learning Jyotish, my first question was, why Saturn picked up moon for his Sadasati? That was my first question. Why can't Saturn transit over Surya, over Mangal, over Brihaspati, over Shukra? Is a very, very dangerous time. Why only the moon? What makes Saturn make a Sadasati when it is transiting over the moon? I'll tell you a very important secret of Jyotish today. Very important. A lot of people will say, you know what? The moon is from where our life starts, right? So, in whichever nakshatra moon is, suppose moon is in the Jeshta nakshatra when you were born, so your first dasha will be Mercury dasha. The lord of the nakshatra starts your Mahadasha. If your Janam nakshatra means your moon is in Anuradha nakshatra, so your Mahadasha, your first Mahadasha will be the Mahadasha of Shani, because Anuradha is dedicated to Shani. Shani has the lordship of Anuradha. That's in the layman term, very, very layman term. And moon is like a mother. Mother gives you the birth. These are the explanations that are given, but I was not convinced with this explanation. They're very simple, technical, bookish explanations that these are the reasons that moon is highly uh, sensitive and it's most important planet after the Surya and blah 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 and this. So I said fine, but still I'm not convinced. Then I found out a secret, and you all will realize this secret within next 5 minutes. Look at your chart. Look at your chart, your own horoscope. Wherever you have moon in your horoscope, wherever, be it first house, second house, third house, fourth house, wherever, irrespective of the Rashi. Forget about Rashi. We'll talk about Rashis later. Wherever you have moon in your chart, in that particular house and a house before that, suppose your moon is in the 10th house. Imagine, then when this native is born,
that native is very emotional in his life about the 10th house, a house before it, which is the 9th house, and a house after it which is the 11th house. Look, where is your moon? If the moon is in the 6th house, you'll be very emotional about your children, about your daily routine, and about your marriage. 5, 6, 7. Because moon was just yesterday in the 5th house when you were born today. You see, today if moon takes 1 day to move in one Rashi, approximately 1 day, 24 hours. So if you are born today and moon is in the 6th house, okay, so 1 day before you were born, when you were sent in this orbit and your soul was wandering to enter the body, right? Moon was in 5th house. You took birth, moon was in the 6th house. And your first day on this universe in the new birth, moon is in the 6th house, in the 7th house, just next house after where it was when you were born. You know what? In everybody's chart, wherever the moon is, a house before that and a house after that is where you people are emotional about your life. Simple. Very, very emotional. It may be hidden from you. You might have not realized it over the years. Exactly. It is like past, present, and future. It is like Brahma, Vishnu, and Mahesh. Wherever your moon is. That is why they say moon sign is your Rashi. What is Ra and what is she? Ra and she is nothing but Rahu and Ketu. What is Rahu? The things that you want in life. What is Ketu? The things that you've achieved in life. So the briefcase, you know that American president have that briefcase, you know, where he can control the world. That briefcase is moon. That briefcase is moon, which has the huge amount of karmas that you have. The epicenter of your karmas is where the moon is sitting. It has those karmas from the past, and then it has the feelings that you have to accomplish in this birth, the things that you want, and both of them are in the form of Rahu and Ketu. Rahu is what you want, and Rahu और केतु की फॉर्मेशन कैसे होती है? चंद्रमा ही तो करता है उसकी फॉर्मेशन. It is the shadow of moon which becomes Rahu and Ketu in the elliptical motion. When this moon comes between sun and earth, the shadow which is formed is which? It is Ketu. And when moon is making a shadow crossing the earth, and then this line is there, sun, earth, and then the moon, then it is Rahu. Simple. Simple. I've done this video on the YouTube. Go watch how Rahu and Ketu are created. So Rashi is formed. Rashi. Ra means Rahu, Shi means Ketu. In Jyotish Shastra, the word Shi belongs to Ketu. And Ra is Rahu. Rashi is nothing but it is the formation, or it is the combination of Rahu and Ketu. The things that you have already, done in the past births and think that you want to achieve in this coming birth. That's your Rashi. And moon is the one who is the transmitter. He is the one who is carrying from wherever your moon is, it starts traveling into different Rashis now, so that it can distribute the karmas to different planets, and that is known as daily gochar, daily transits, daily nakshatras. और वो बीज गिराने शुरू करता है. Imagine your horoscope is like a field, खेत है, और चंद्रमा के हाथ में वो बीजों की सीड्स की थैली है, और वो फेंकने शुरू करता है चलता हुआ. उसमें से जो फल निकलते हैं वो आपके कर्मों के फल हैं.
और आप अपना जीवन वहां पर बिताते हो, आप इस पूरी जिंदगी को वहां पर जाकर आप खत्म करते हो और अगली जिंदगी की तरफ देखते हो। अब शनि को यह ज्ञान था, Saturn knows that this guy is very emotional about the 7th house, the 8th house, and the 9th house. Somebody just wrote, Jyoti just wrote, Guruji, moon is in the 8th house in the Capricorn. 8th house, Jyotisha. So what is this Jyoti so much sentimental about? She's sentimental about three things: marriage, associations, income, 7th house; occult sciences, Jyotish, Reiki healing, Vastu, numerology, 8th house; and 9th house, Guru, teacher, bosses, spiritual life. These are 5 to 7 aspects that Jyoti is very sentimental about, emotional about. That's the theme of the life. If your moon is in the first house, right? Oh, Prakash just said moon in the first house. It was on my tongue. Ma Saraswati is in his fingers today. Moon in the first house. You were Jyoti, but now you may be, I mean, because of the karma, but you were. So first house moon is very, very emotional about moksha. A house before that. These people say, can I do some karmas because of which I can attain liberation? Whenever somebody will talk about liberation or will give you gyan about liberation, that person will be very emotional about it. Then about your intelligence, about your lagna, pure intelligence. And the second house, excuse me, what is the second house, by the way? Second house is your communication. People are emotional about the way you communicate with people and the way people communicate with you. That's what second house is. Second house is emotional about your food habits. Second house is emotional about your savings, your assets. Whatever money you will save, you have emotions in it. Such people can't waste money. They'll be emotional about the wealth. Second house is family. So they can become emotional about kutumb. You know what? So that's how moon is working. Now, what happens when Saraswati comes in? What happens when Saturn start, transiting over the 12th house for Prakashji? Or when Saturn wants to transit in the first house or in the second house? First, Shani will request moon. Can you show me his karma? Good or bad? Since we are here on this earth, we have 70% bad karmas and 30% good karmas only. Otherwise, we would have not been on the earth. Simple. And 90% of the people have only 10% good karmas and 90% bad karmas. That is why they have a lot of suffering. No money, no honey, no bunny, nothing. Neither they have bunny, which is child with them, nor they have honey, which is life partner, nor they have money. But they have Shani. They have Shani. No honey, no money, no bunny, but Shani. You know that? So Shani asks Chandra, come sit with me. I need your 10 minutes on Sonali's chart. क्या कर्म है इसके? वो बोला ऐसा है, इसने ना अपने जीवन में ये 80% बुरे कर्म किए, 20% अच्छे किए. जब मैं इसके
नवतारा में अच्छे नक्षत्रों में होता हूं तो इसको अच्छे अच्छे फल देता हूं डेली बेसिस पे। नवतारा नक्षत्र में हम सिखाते हैं जन्म, संपत, क्षीमा, उसमें सब विपत हम सब सिखाते हैं कि आपको पता होना चाहिए सीधा सीधा, नक्षत्र के नाम याद हो ना हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नवतारा के अंदर आपके कौन से ग्रहों के नक्षत्र खराब हैं। जैसे अनुराधा नक्षत्र का कभी खोल के देखना, सूर्य, मंगल और केतु के नक्षत्र खराब होते हैं। जब भी सूर्य का नक्षत्र होता है या केतु का नक्षत्र होता है या मंगल का नक्षत्र होता है, अनुराधा अगर आपका जन्म नक्षत्र हो तो उसमें आपके दिन खराब जाते हैं। मुझे पता होता है कि मैं सूर्य का आज नक्षत्र है, मैं कुछ नहीं करूंगा, आज मंगल का नक्षत्र है, मैं राम राम करके निकालूंगा। इस तरह से आपको पता होना चाहिए। 3 ग्रह ऐसे होते हैं नवतारा सिस्टम के अंदर जिनके नक्षत्र खराब होते हैं और आपको याद रह जाता है कि आज इसका नक्षत्र है, तो 9 दिन आपके खराब हैं और बाकी 21 दिन ठीक है। 21 में से भी कुछ ग्रहों के रिजल्ट आएंगे, तो बहुत एक बड़ा अच्छा तरीका होता है एक मंथली प्रिडिक्शन निकालने का, जो हम नक्षत्र में आपको सिखाते हैं। तो उसने बोला कि इसको ओवरऑल लाइफ में ना, मेरे को इसका इसलिए इस घर में आना पड़ा क्योंकि ये दिस पर्सन वाज वेरी इमोशनल अबाउट मैरिज। अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा हूं मैं, और गुरु को लेके बड़ा इमोशनल है और अपनी अकल्ट साइंसेस को लेके बहुत इमोशनल है। लेकिन इसने कुछ अच्छे कर्म नहीं किए हैं पिछले जन्म में शादी को लेकर। कुछ हो सकता है ज्योतिष में गलतियां की हो, कुछ हो सकता है गलतियां गुरु के साथ की हो, अपने बॉसेस के साथ की हो। अब आप आ रहे हो शनिदेव, आप क्या हो? आप जज हो, आप मैजिस्ट्रेट हो। चंद्रमा के ऊपर बृहस्पति भी गोचर करता है, एक घर पहले बाद में, और उसके ऊपर शुक्र भी करता है, मंगल भी करता है। लेकिन इन सभी ग्रहों में से कोई भी जज नहीं है। सजा देने का हक केवल जज को है, मैजिस्ट्रेट को है, पुलिस को भी नहीं है, मंगल को भी नहीं है। आपकी मम्मी को भी मम्मी कितनी सजा देगी? 2-4 चांटे लगा लेगी, डंडे लगा लेगी, बाथरूम में बंद कर देगी छोटे बच्चे को, पापा आके छुड़ा लेंगे। पापा कितना पीट लेंगे, वाइफ कितनी पीट लेगी, कितनी सजा दे देगी। वाइफ से ज्यादा कलेश होगा तो डिवोर्स करा लोगे आप, बच जाओगे उससे। या हस्बैंड ज्यादा कलेश करेगा तो डिवोर्स ले लोगे आप उससे। लेकिन जब मैजिस्ट्रेट सजा सुनाता है, फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता ना। मजिस्ट्रेट ने बोला आपको 10 साल की सजा, तो फिर आपके मम्मी पापा बहन भाई कोई भी जो है वो आपको बचा नहीं सकता। तो ये कैपेबिलिटी किसके पास है? शनि के पास। देखो मैं रियल लाइफ की एग्जांपल दे रहा हूँ, रियल लाइफ में आपको शनि की साढ़े समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाई सैटर्न ट्रांजिट इज द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रांजिट। तो शनि कहता है कि अब मैं जज करूंगा इसके कर्मों को, और आपको तो पता नहीं होता कि पास्ट में आपने क्या कर्म किए। हाँ, इस जन्म के आपको कर्म पता होते हैं कि आपने यहाँ यहाँ पे ठगी मारी है, यहाँ पे नुकसान किया है, यहाँ पे ये किया है, यहाँ पे वो किया है। यू नो ऑल दोज थिंग्स ऑफ दिस कर्मा, ऑफ दिस बर्थ, आई एम सॉरी। बट बहुत से ऐसे कर्म है जो आपको याद ही नहीं है पिछले जन्मों के, लेकिन वो सारा रिकॉर्ड चंद्र के पास है। मून हैज द रिकॉर्ड। मून नोज what is good, what is bad, and moon present it to शनि। और मून प्रेजेंट कब करेगा? जब शनि चंद्रमा के नजदीक होगा। मतलब चंद्रमा आपके नेटल मून से शनि मान लो 30 डिग्रीज या 40 डिग्रीज दूर होगा, तो मतलब नजदीक आ गया। अब नजदीक आ गया तो उसने उसको भेज दिया आपका पूरा लेखा जोखा। अब लेखा जोखा भेजा तो फर्स्ट ढैया के अंदर, which is the 2.5 years of Saturn. I hope you know. Should I make it on a white board कि शनि की साढ़े कैसे होती है, कि शनि चंद्रमा के ऊपर कैसे ट्रांजिट करता है? You know it is very easy ना, one house before where moon is and on the moon and one house after moon. This is known as साढ़े। You want me to make a pictorial description? I think you can understand this thing. अगर करना है तो I can. Okay, I can do it. I can do it for you. See, what is not a big deal. You see, I can in fact share the presentation only with you. साढ़े। So
फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू हैव मून हेयर इन द फर्स्ट हाउस, ठीक है, शनि की साढ़े स्थिति राशि से देखी जाएगी, क्योंकि सैटर्न विल ऑलवेज मूव इन अ राशि, नॉट इन अ हाउस। ओके, राशि किसी भी घर में हो सकती है, किसी भी भाव के अंदर हो सकती है, किसी भी हाउस में हो सकती है। सो मान लीजिए अभी जिनका चंद्रमा, मान लो किसी का चंद्रमा एक्वेरियस में है या कैप्रिकॉन में है, या जिसका चंद्रमा पाइसिस में है, उनके ऊपर साढ़े सती चल रही है। क्यों चल रही है? व्हाई? इनफैक्ट अगर किसी का चंद्रमा यहां भी था तो उसको अभी अभी साढ़े सती खत्म हुई है, क्योंकि सैटर्न अभी कहां पे गोचर कर रहे हैं? ये आपका नेटल मून है। नेटल मतलब जन्म के समय। दिस इज योर नेटल मून। और प्रेजेंट में शनि इस समय एक्वेरियस में है। दिस इज गोचर, गोचर, ट्रांजिट। ओके, सो जब भी सैटर्न चंद्रमा से एक घर पहले, चंद्रमा के ऊपर और चंद्रमा से एक घर आगे ट्रांजिट करेगा, ऐसे मूव करेगा, यू नो, लाइक दिस, ये जो मूवमेंट है ये 7.5 ईयर्स की होगी, क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 साल गुजारता है। 2.5 ईयर्स यहाँ पे, 2.5 यहाँ पे, और 2.5 यहाँ पे। 2.5, 2.5, 2.5 is 7.5 एंड नोन एज साढ़े सती। सो यहाँ पे मान लीजिए आपका मून एक्वेरियस में है, तो जैसे ही शनि कैप्रिकॉन में एंटर किया, आपको फर्स्ट ढैया लग गया। फर्स्ट ढैया मीन्स फर्स्ट 2.5 ईयर्स। नाउ दिस इज नोन एज सेकेंड ढैया एंड दिस इज नोन एज थर्ड ढैया। और जब मून मूव आउट हो जाएगा पाइसेस में से, तो आपकी साढ़े सती खत्म। सिंपल, साढ़े सती ओवर। और ये मूवमेंट एवरी 30 ईयर्स में रिपीट होता है, क्योंकि 12 राशियों में गोचर करने के लिए तो अप्रोक्सीमेटली 30 ईयर्स चाहिए। तो 22-25 साल के बाद साढ़े सती का आगमन फिर से हो जाता है, यू नो। सो दैट्स हाउ द साढ़े सती मूव्स। तो एक अगर आपकी 70 साल की जिंदगी है, तो उसमें 2 या 3 साढ़े सतीज आपकी लाइफ में आ सकती है। तो अगर आप ऑलरेडी 40-50 साल के हैं, तो आपने एक साढ़े सती जरूर देखी होगी अपनी पिछली लाइफ में, और वो सॉफ्टवेयर इजीली बता देता है साढ़े सती कैलकुलेशन। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको सॉफ्टवेयर में भी बता देता हूँ कि किस तरह से आपको अपने साढ़े सती के साइकिल्स जो हैं वो पता लग जाते हैं। सो मान लीजिए आज किसी का जन्म हुआ है, सिर्फ somebody is born today, okay, so let me share my screen with you. So I have made this chart of somebody who is just born right now. So here is the chart. So tell me, is he in the Sarasati? The answer is yes. He's in the last dahi of Sarasati, because moon is here na, in the sign of Dhanu, and Saturn is transiting here आज के दिन में, तो इसके ऊपर साढ़े चल रही है, ठीक है। और सैटर्न कंप्लीटली निकल जाएंगे और एक्वेरियस में एंटर करेंगे 17 जनवरी 2023 को, ठीक है। तो वहां पे इसकी साढ़े खत्म हो जाएगी। लेकिन टेक्निकली अभी रेट्रोग्रेड होके यहाँ पे आए हैं। वैसे शनि एक बार एक्वेरियस को 29 अप्रैल 2022 को टच कर गए थे, अंदर आ गए थे, फिर वापस से कैप्रिकॉन में गए, क्योंकि वो वक्र हो गए। इसीलिए 7.5 साल की जो साढ़े सती होती है, कभी कभी 8, 8.5 साल की हो जाती है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशंस में जाएंगे, और सॉरी, यहाँ पे हम जाएंगे रेमेडीज में। सो वी गो टू क्लिक ऑन रिपोर्ट्स एंड देन वी गो टू रेमेडीज एंड विल गो टू रिजल्ट्स ऑफ साढ़े सती, और वी कैन जस्ट क्लिक ऑन साढ़े सती कैलकुलेशन। सो साढ़े सती कैलकुलेशन में जाएंगे तो आप देख रहे हो 17 जनवरी 2023 तक इसकी साढ़े सती चलेगी, जो मैंने आपको बताया, अभी बताया। इसकी लाइफ में अगली साढ़े सती पता कब आएगी? क्लोज टू 20 ईयर्स के बाद, ठीक है, वो भी 21-22 ईयर्स के बाद। कब? फर्स्ट ढैया स्टार्ट होगा 2043 में, 2043 के अंदर, और 7.5 साल के लिए ये इसका फर्स्ट ढैया होगा, राइट। तो इसकी एज वहां समय कितनी होगी? उस समय ही विल बी क्लोज टू 21, 22, 23 साल, ठीक है। उसके बाद फिर अगला ढैया आएगा 73 से 81 में। सो इसकी 120 ईयर्स की अगर लाइफ कैलकुलेट की जाए तो इसमें
3 साढ़े सती आई। एक तो इसने साढ़े सती में जन्म लिया, थोड़ी सी साढ़े सती बचे थी, ओके, और दूसरा और तीसरा 2 साढ़े सती जिसकी लाइफ के अंदर आएंगी, आपको उसका पीरियड पता लग गया। तो इस तरह से साढ़े सती शनि का गोचर है, चंद्रमा के एक घर पहले, चंद्रमा के ऊपर और चंद्रमा से एक घर आगे। दिस इज नोन एज साढ़े सती, राइट? If a house before moon house is Aquarius in January, will that effect be multiplied? मेरे को रुचि ये बात समझ नहीं आई आपकी, कैन यू से दैट अगेन प्लीज? Yes, sir. Guruji, so actually my moon is in the Pisces, or जो साढ़े साथी है, it will start for me in January. And so Aquarius, as Saturn is transiting through the Aquarius house, or will that impact me doubly क्योंकि वो मेरा house भी Aquarius और Saturn की position भी Aquarius में है. Sorry if I'm asking the Yeah, wrong you're right, question. you're right, you're right. You're asking the right question. You're trying to say is कि आपका शनि ऑलरेडी एक्वेरियस में है, एक तो वो अपने साइन में आ रहा है जहाँ पे वो नेटल शनि बैठा है, और फिर चंद्रमा की साढ़े सती भी ले रही है, तो क्या वो डबल इम्पैक्ट जी होगा जी आपके ऊपर? दैट्स व्हाट यू ट्राइंग जी. टू आस्क. See, it Yes, is, thank you can't say it a double impact, but definitely the impact will be strong. Okay, तो एक strong effect होने वाला है, right? So it is not, I would never use a double effect or a triple effect or a 4 times effect. It is a strong impact because Saturn is already giving you the flavors from, from the lives and lives to come, right? In the entire chart. So उसमें क्या होता है कि आप अपने जीवन में ना, आपने अपना मन बहुत मारा होगा बहुत सी चीजों को लेके, यू हैव रिस्ट्रिक्टेड योर माइंड, या हालातों ने आपके मन, जैसे एक मन में इच्छा होती है ना कि मुझे ये अच्छा मिले, घर अच्छा मिले, लाइफ पार्टनर अच्छा मिले, चीजें अच्छी मिले, ऑफिस में चीजें अच्छी हो जाए, लेकिन मन हमेशा रिस्ट्रिक्टेड ही रहा होगा। आप समझ रहे हो? सो वो चीज जो है ना, वो मतलब शनि चंद्रमा से एक घर पहले कर देता है। Anyways, if you have teacher, guru and Gayatri mantra and Shri Ram's blessing, so nothing goes bad. Nothing goes bad. अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब शनि महाराज कर्म देख लेते हैं, और शनि महाराज कहते हैं कि चलो अब 7.5 साल इसके माइंड के ऊपर मेरा कब्जा है, इसके चंद्रमा के ऊपर मैंने कंट्रोल कर लिया चंद्रमा। अब इसको जिंदगी के लेसन देने शुरू करते हैं, क्योंकि मन जीते जग जीते वाली बात है। आप याद करो, मैंने जेमस्टोन वाली आपको वर्कशॉप में ये बताया था कि how can you make your dasha not give you suffering is when you don't take those sufferings. Simple as that. If you have a strong mind, whatever your circumstances are, the dasha cannot affect you. If you have a good dasha but a weak mind, even you can't enjoy good dasha, right? That is what Shani knows about human nature. So Shani says कि इसका मन को पकड़ते हैं, इसके मन को इम्पैक्ट करते हैं। सबसे पहले शनि का जो पहला ढैया होता है, ये रूल आप याद रखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। शनि सबसे पहले आपके कदमों पे इफेक्ट करता है, पाँव पे। फर्स्ट ढैया इज ऑन योर फीट। अब लोग बोलेंगे कि फर्स्ट ढैया इज ऑन द फीट, मतलब मेरी पाँव में कोई प्रॉब्लम आने वाली है, मेरी लातों में प्रॉब्लम आने वाली है। आंसर इज नो। द मीनिंग यहाँ पर जो मुनि पराशर कह रहे हैं, या जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट ढैया है वो आपको भटकाना शुरू करता है। आप भटकते कब हो? जब आपको रास्ता नहीं पता लगता और आपके कदम यहाँ वहां जा रहे होते हैं, आप भटकना शुरू कर देते, आप गिरना शुरू कर देते हो, जब आपके कदम आपका साथ नहीं देते। मेरे पास कंसल्टेशंस आती है ना, तो साढ़े सती शुरू होने से पहले लोग मेरे से पूछते हैं, सर हम जॉब चेंज कर लें, आई एम गेटिंग अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आपको पता है वो अपॉर्चुनिटी एक ट्रैप होती है, इट्स अ ट्रैप। और मैं उसको बोलता हूं कि भाई मेरी बात सुन, इस अपॉर्चुनिटी को मत लेना। गुरुजी, आई एम गेटिंग सच अ गुड हाइक and the company is fantastic. Guruji, I am getting this partnership offer. I want to leave my job
and I'm really getting, this is my dream come true. I want to do this business. Guruji, I was having a relationship from last 10 years with a girl, but there's another beautiful girl who was in my class, and I always loved that girl, and she's approaching me again, or that boy is approaching me again. What to do, Guruji? It's a honey trap. You will lose a good relationship, and she will give you break up in 6 months. धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का. Guruji, I left the job and started this business and lost all my money. You know what will Sadhasati do? Sadhasati will take you to wrong places at wrong time. That is the first daya. You will meet wrong people. You know what are these wrong people? These wrong people are the people जिनके साथ आपका प्रारब्ध है पिछले जन्मों का, आपका कार्मिक सेटलमेंट है. They will come in your life, they will give you some loss, and they will never show their face again. This is first daya of Sadhasati. And the people whom you know from long time, they will show their real face. एक पार्टनर था जो आपसे 10 सालों से चोरी कर रहा था आपके बिजनेस में. कितनी चोरी कर रहा था? 10,000 रुपए महीना इधर उधर कर रहा था बस. पिछले 10 सालों से आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा उसका, और अगले 10 सालों में भी आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस चीज से, अगर आपको ना पता लगे. आपका बिजनेस अच्छा चलता रहेगा, लेकिन शनि की साढ़ेसती में पता लग जाएगा, आपकी पार्टनरशिप टूट जाएगी, आपका काम बंद हो जाएगा फॉर नो रीजन. हर एक का पास्ट होता है, हर एक के अफेयर्स होते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, शादी के बाद भी कुछ इन्फेक्चुएशंस होती हैं. वो शुरू भी होती हैं और खत्म भी हो जाती हैं, लेकिन जिंदगी चलती रहती है. कोई ना कोई ऐसी चीज रिवील हो जाएगी जिससे आपको जिल्लत सहनी पड़े, आपकी मेंटल पीस खराब हो जाए. फ्रॉम नोवेयर दैट पर्सन विल कम. In fact, one strange thing happened. Very strange thing happened with my wife. She entered the Sadhasati. Within 3 months, she was on a walk with my daughter in a park, और एक छोटी सी रस्सी उसके पांव में अड़ी. She fell down and she broke her foot. And there was a fracture, and she was in plaster for 3 months. She was on a wheelchair. And this happened just when, this was last year. That's how it is. It was, I think, last year. Can you imagine that? कि पहला ढैया कैसे पांव पे पड़ता है. अब उसके कर्म किसी के साथ इतने खराब नहीं थे, लेकिन हो सकता है कि कोई फिजिकल कर्म उसके ऐसे रहे हो कि किसी ने उसने रोका हो किसी को 3 महीने के लिए अपने पिछले जन्म में. या जब आप पिछले जन्मों में अपने बुजुर्गों के साथ बदतमीजी करते हो ना, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, इन लॉज, पिछले जन्मों में, तो शनि की साढ़ेसती आते ही आपकी लात टूटती है. आपका पांव टूटेगा, आपके पांव में चोट आ जाएगी, चाहे वो आपका पिछले 25 पे पिछला जन्म क्यों ना हो. और अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने किसी को रिस्ट्रिक्ट किया है, तो आपका काम कम हो जाएगा. आप ऐसे लोगों से मिलोगे, आपको वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगेगी, इट विल बी अ ट्रैप. So when this happened, I gave a remedy to my wife. Doctor said कि ना ये प्लास्टर 3 महीने लगेगा, इट्स अ मेजर फ्रैक्चर. इनफैक्ट डॉक्टर वाज सेइंग मुझे सर्जरी करनी है और इसमें छोटी सी रॉड या कुछ प्लेट डालनी है. आई सेड डॉक्टर, यू विल नॉट डू इट.
आप चुपचाप जोड़ दो, अगर नहीं जुड़ेगी 3 महीने बाद देखेंगे। सर्जरी 3 महीने बाद करवाई जा सकती है? वो कहता हाँ करवाई जा सकती है। देन उन्होंने मेरे को ये भी बोला कि सर अगर हड्डी एक तरफ बढ़ गई तो प्रॉब्लम होगी। सर बढ़ने दो, मैंने कहा आप प्लास्टर लगाओ, छोड़ो, आई डू द रेमेडी। तो मैंने इसको बोला कि अंडर प्रिविलेज जो लोग होते हैं या बुजुर्ग ना, जो ओल्ड एज होम है, वहां जाके दान करना शुरू करते हैं। और तू ये मन्नत मांग कि जो तेरे को मैंने व्हीलचेयर अभी लेके दी है, तू इस व्हीलचेयर को किसी को दान कर देगी। कैन यू बिलीव, आफ्टर 35 days व्हेन वी वेंट, वो पूरी की पूरी हड्डी जुड़ चुकी थी और जहां वो जुड़नी चाहिए थी, एंड हर प्लास्टर वाज ऑफ विद इन 40 days एंड शी वाज वॉकिंग ऑन द 45th day. She was walking, which was 90 days. The karma was settled. और अगर उसको अपने माँ बाप पे या किसी पे, किसी बड़े बुजुर्ग के गुस्सा भी आ जाए ना, तो वह वो गुस्सा, मैंने उसको बोला मत कर, क्योंकि अगर तू गुस्सा करेगी तेरी फिर से लात टूट जाएगी। और इस जन्म में नहीं टूटेगी तो अगले जन्म में टूटेगी, टूटेगी जरूर। So the first thing that you have to do when you have a sadasati, start respecting slow moving objects, handicap, blind, old age, old people. Immediately उनको रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो। And do not change your job, do not change your profession, do not change all these things. Oh Guruji, I was dying to work in this company. Okay, go join. You joined, and suddenly you realize that you have the worst boss in that company and your colleagues are not helping, your team is not working, and you are in the bottom queue, and they'll chuck off or chunk off the 5% BQ, and you are in that BQ, and you're fired within 1 year. I say, oh no, why did I leave? I know the devils in my previous company. In this company, I don't know who's the devil and who is not. I'm in trouble. It will give you sorrow. This first dhaiya will push you to wrong places in the wrong time. Wrong places, wrong time. You'll encounter wrong people, which will lead to wrong circumstances. और आपके बहुत से कर्म जो हैं वो justify होंगे. Now you've done certain good karmas, so you will also get results of those good karmas as well. Guruji, I really progressed in Sadasati, but I ask you deep inside your mind, was that progress easy? कभी भी किसी की साढ़े में अगर उसने प्रोग्रेस भी किया है ना, लेकिन उसकी लाइफ टर्मोइल वाली ही रहेगी 7.5 साल। फुल स्टॉप है इसमें, ओवर एंड आउट, फुल स्टॉप। हाँ, तो चेंज हाउस, आपका मन करेगा ना चेंज करने को, आपके पड़ोसी गंदे निकलेंगे, उस घर में जाके बीमारी होनी शुरू हो जाएगी। आपका अर्ज है कि मैं चेंज लूं, 7.5 में तो आपका दिल करेगा ही करेगा कि मैं जॉब चेंज कर लूं, गाड़ी चेंज कर लूं, घर चेंज कर लूं। आपका बड़ा मन करेगा गाड़ी लेने को, आपका बहुत मन करेगा घर चेंज करने को, आपका मन करेगा मैं अपने आप को बदल लूं। एंड देन यू गेट अ टाइट स्लैप फ्रॉम Saturn, one right, one left, and then you realize, oh, I am in Sadasati. Then you call an astrologer. Guruji, please check what is happening in my life. Nothing is happening. Sadasati is happening. हाँ बिल्कुल, अगर दशा अच्छी नहीं है तो सोने पे सुहाग है। एक तो दशा, और एक बात बताऊं, मैक्सिमम लोगों की 7.5 केतु की दशा में आएगी। मैक्सिमम लोग कलयुग के अंदर राहु की दशा में आएगी, केतु की दशा में आएगी, या कोई ऐसी दशा होगी जो फेवरेबल नहीं हो। इन कलयुगा दिस इज हैपनिंग।
Even if Saturn is well placed, you will get some gains, but आपका मेंटल टेंशन और टर्मोइल बनी रहे. साढ़े is here to teach you lesson. देखा ना, वो बोला lots of gains but lots of hard work and lots of learning. बस करा देगी, मतलब पैसा तो चलो आ रहा है, किसी राजयोग की वजह से पैसा आ रहा है, लेकिन आपकी बस हो जाएगी. नॉट नेसेसरी कि जहां पे वो जा रहा है वहीं पे चेंज होगी. यू आर जस्ट इमोशनल, आपके इमोशंस वहां के जरूर हिट होंगे जहां पे शनि जा रहा है, रिस्ट्रिक्टेड फील करोगे. बट चेंजेस इज बेस्ड ऑन द कर्मा, बिकॉज शनि की दृष्टि भी तो है ना, 3, 7, 10. तो जहां जहां शनि मूव करेगा वहां पे दृष्टि डालेगा, उन हाउसेस में चैलेंजेस लेकर आएगा, उन हाउसेस को रिस्ट्रिक्ट करेगा. जहां भी शनि एंटर कर रहा है उसकी दृष्टि भी साथ साथ मूव कर रही. और शनि की दृष्टि गुरु की दृष्टि की तरह अच्छी नहीं होती है. शनि की दृष्टि बहुत रिस्ट्रिक्शंस देती है, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस देती है. मैक्सिमम लोगों की शनि की साढ़े केतु में आ जाएगी, राहु में आ जाएगी, शनि की दशा में आ जाएगी, राइट. ऐसे ना ऐसे ग्रह की जो कि बेनिफिक्स नहीं है. यस, retrograde Saturn delay things further. It's a pain. You want to do so many things, you're not able to do. That's what Saturn retrogression is. Every day you plan, I'll do this, I'll do that, I'll start this, I'll start that. Nothing working practically. That's retro Saturn. And then you become obsessive about your views. That's another problem. See, the last 2.5 year Nitin ji is little better because, when you are in habit of taking pain, the pain stops affecting you. आप समझ रहे हो? जब आपके कट लगता है ना, तो उस समय बड़ी दर्द होती है, लेकिन जब ब्लड निकलता जा रहा है, फिर पेन खत्म हो जाती है 4-5 मिनट के बाद. Yes, Guruji. So that will be like the healing time. हीलिंग टाइम कह लो, आदत पड़ जाती है ना. आप इतना दुख सह लोगे. अब एक इंसान आपसे कोई बदतमीजी करके जाता है, फिर दूसरा इंसान भी बदतमीजी करता है, उससे बच्चे बदतमीजी कर रहे हैं, पत्नी बदतमीजी कर रही है, कुलीग बदतमीजी कर रहे हैं. अब चौथा आके कोई तीसरा चौथा आके दोस्त बदतमीजी कर लेगा लास्ट 2.5 ईयर में, तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? इतनी बदतमीजियां सह के आपको क्या होगा? उसमें कुछ भी नहीं होगा कि भाई तू भी कर ले भाई. इट्स ऑल अबाउट माइंड. योर माइंड बिकम स्ट्रांग कि अब आप सह लोगे. लास्ट ढैया तक पहुंचते पहुंचते जो मैंने फॉर्मूला आपको अभी बताया इन द बिगिनिंग, दैट इट्स ऑल अबाउट योर माइंड. आप दुख लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहते तो उसके लिए आप ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हो. ये मन पे है, और मन स्ट्रांग होता है श्री राम जी की आराधना करने से, हनुमान जी की आराधना करने से. इसीलिए कहा जाता है कि साढ़े के अंदर आप हनुमान जी की प्रार्थना करो. इसलिए कहा जाता है कि आप साढ़े के अंदर श्री राम जी की आराधना करो. क्यों? क्योंकि श्री राम आपको गलत कदम चलने नहीं देते, हनुमान आपको गलत कदम चलने नहीं देते. वो गलत लोगों को आपसे दूर रखते हैं और आपके मन को बलशाली बनाते हैं. इट मेक्स योर माइंड स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन यू प्रे टू हनुमान. दैट इज द रेमेडी ऑफ शनि साढ़े. Become an avid devotee of Shri Ram. Absolutely. Again, Prakash ji is having Ma Saraswati, with her today. The moment I am about to say something, Prakash ji is typing the same. साक्षात सरस्वती है आज इनके पास. Because it is the Shakti of Hanuman ji that will not allow Shani to enter in your life. तो पहली साढ़े आती है पाँव में. दूसरा ढैया सबसे ज्यादा पावरफुल ढैया होता है. उस समय शनि आपके दिमाग में एंटर करते हैं.
Saturn enters your mastic, your brain. Now you imagine what will happen when Saturn enters your brain. You will become slow, lethargic. Your decision-making ability is gone. You are lost. You have no idea how to tackle situation. You are just wasting time and passing time. The second day, you're sitting on one branch, then you're sitting on another branch, looking for something, nothing happening, nothing working, just blank mind. People call me in their second day saying, Guruji, I have no idea what to do. I was such a good decision maker. I was so sharp. Last 2.5 years, I've lost so many things. But now, seriously, I am at a point where I don't know what to do in my life. I'm absolutely blank. Without even looking at their chart, I tell Naman or people sitting around me, इसका शनि की साढ़े का दूसरा ढैया होगा. दूसरे ढैये में दिमाग ही चलना बंद हो जाता है. पहले ढैये में दिमाग चल रहा होता है. कदम गलत चल रहे होते हैं. गलत कदमों की तरफ दिमाग चल रहा होता है. In second ढैया, your brain is not working. Shani has full control over your brain. Either it is making you work hard tremendously, or it is not letting you work hard at all. You will get anger in the second ढैया. गुस्सा इतना बढ़ जाता है second ढैया में कि आप high headed होकर decisions लेने शुरू करते हो, and those high headed decisions go wrong. The second ढैया, you will fight with everyone. You'll fight with your mother. You'll fight with everyone. You'll fight with every single person. जो आया सामने उसके साथ लड़ाई हो जाएगी आपकी. कलेश. एम्प्लॉइज के साथ, टीम मेंबर्स के साथ, जूनियर्स के साथ, नौकरों के साथ, हर एक के साथ आप अब लोग मैं इसका सिर फाड़ दूं या अपना सिर फाड़ लूं. दैट इज द सेकंड ढैया. मन व्याकुल. सेकंड ढैया बिल्कुल. नितिन जी, इसको कंट्रोल कर सकते हो? श्री राम, जो वर्ड राम है ना, जो राम वर्ड में जो वर्ड र है, रा, दैट बिलोंग्स टू अग्नि. राम, राम, रा इज अग्नि. म इज कूलिंग इफेक्ट. बैलेंस करती है अपनी अग्नि को. तो आपकी जुबान में से जो ड्रैगन की तरह आग निकल रही है, उसको राम नाम एक्टिव कर जो है उसको न्यूट्रलाइज करेगा. सो यू जस्ट हैव टू चैंट राम ऑल द टाइम. आई कीप डूइंग इट. श्री राम 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 राम. श्री राम 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 राम. श्री राम 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 राम. श्री राम 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 राम. जब तक सांस टूटने ना लगे ना, एक ही सांस में देखो कितनी बार राम बोल सकते हो. ट्राई करें. श्री राम 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 राम. जब तक आपके फेफड़े खिंचने ना लगे. फिर एक लंबी सांस लो. फिर श्री राम 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 राम. पूरा पेट अंदर चला जाए राम राम बोलते. फिर सांस लो. ऐसे करो राम का जप. सारा गुस्सा खत्म, सारा लड़ाई झगड़ा खत्म, कलेश खत्म. आपका लड़ने का मन ही नहीं करेगा किसी से. Right. Thank you, Guruji. Ram and- Japa. या एंड तक श्री राम कहते रहे रावण को, भाई तेरा मेरा कोई कलेश नहीं है. तेरी लंका तुझे मुबारक. तेरे सारे भाई मर चुके हैं. तू मेरी पत्नी लौटा, चाहे माफी भी मत मांग. मेरी वाइफ मुझे वापस कर दे, मैं तेरे प्राण बख्श देता हूं. पर रावण को तो मोक्ष चाहिए था. वो कह रहा है मैं तो मरूंगा तो श्री राम के तीर से मरूंगा, तभी मोक्ष प्राप्त होगा. मैंने तो पूरा एजेंडा इसलिए किया है, नहीं तो मैं सीता मैया को टच ना कर लेता. मैं तो सीता मैया को टच ही नहीं किया. मैं तो मरने के लिए ये सारा कांड किया. शिव भक्त था वो. क्या राम जी, आई विल नॉट गिव इट बैक. यू किल मी एंड टेक इट.
So whenever you have problems with Shani, you have to become devotee of Shri Ram. और जब हनुमान जी को भी आप प्रार्थना करते हो तो हनुमान जी को भी यही कहा करो कि हनुमान जी मेरे राम जी को राम राम कहना। तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं, ये तो राम भगत है, मैं तो इसका फैन हूं और ये मुझे ही बोल रहा है कि राम जी को जाके मेरी तरफ से राम राम कहना, क्योंकि हनुमान जी का तो एक्सेस है राम जी के पास। राम जी को कभी भी मिलने जा सकते हैं हनुमान जी। तो कितना अच्छा तरीका है, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद हनुमान जी को कहो हनुमान जी मेरे राम जी को मेरी तरफ से राम राम जी कह दोगे? हनुमान जी बोलेंगे अभी कह दूंगा मैं जागते हुए। तो आपकी हाजिरी लग गई। एक भजन भी लिखा है, मेरे राम जी को राम राम कहना जी हनुमान। पूरे धुन में गा सकते हैं हम वो भजन। वीआईपी पास, प्रायोरिटी चेक इन, हाँ, प्रायोरिटी चेक इन। That's the second dahya. Your brain freezes. And you know what? Your life is in coma. Your business is in coma, your work is in coma, your personal life is in coma, your financials are in coma. Everything is coma in the second dahya. You have to make your brain work. Now when you enter third dahya, at least now Shani is out of your foot, so you can meet right people. Start meeting right people. Shani is out of your brain, so now you start thinking. दिमाग थोड़ा थोड़ा चलने लगता है. That is why people say third dahya is good. But third dahya goes to your heart. आपके माइंड पे इफेक्ट करता है. पहला ढैया किस पे इफेक्ट कर रहा था? ब्रेन पे. अच्छा, जब कोई भी शनि माइंड पे इफेक्ट करेगा ना, तो आपका माइंड आपकी फेस वैल्यू है. जब भी आपका माइंड खराब होता है, आपका चेहरे से पता लग जाता है ना कि आपका चेहरा उदास है, खुश है, मतलब आपका माइंड खुश है या उदास है. तो शास्त्रों में लिखा है कि तीसरा ढैया मुख पे आता है, मुख पे. द वर्ड शास्त्र हैव यूज्ड इज मुख. मुख होता है चेहरा. तो देखना तीसरा ढैया अगर किसी का चल रहा होगा ना, उसके चेहरे पे छाइयां पड़नी शुरू हो जाएंगी. चेहरा चेहरा काला होना शुरू हो जाएगा, चेहरे पे छाइयां पड़नी शुरू हो जाएगी. उसका दिमाग भी चल रहा है, उसका दिमाग भी चल रहा है, उसकी लातें भी चल रही हैं, लेकिन उसका माइंड नहीं चल रहा. माइंड प्रोडक्टिव नहीं है, जिससे उस इंसान को लगता है मैं बहुत रिस्ट्रिक्टेड हूँ, मैंने बहुत सहा, लेकिन अब मैं हर एक चीज सोच सोच के करूंगा. मैं बुरे कर्म नहीं करूंगा, मैं जल्दी जल्दी नौकरी नहीं बदलूंगा, बिना सोचे समझे इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा. Now brain has started working because brain has seen, I will not trust the woman, I will not trust this man. All these things will start coming. You will become extremely spiritual. और शनि की साढ़े का सबसे बड़ी आउटकम क्या होती है? ज्योतिष. जैसे ही फर्स्ट ढैया आपकी लाइफ में आता है, आप एविड डिवोटी बन जाते हो ज्योतिष के. आप वीडियोस देखना शुरू करते हो, ज्योतिष, रेकी हीलिंग, वास्तु, न्यूमरोलॉजी. यू जस्ट गो क्रेजी इन दी साढ़े. क्यों? क्योंकि जब दुख होगा, तकलीफ होगी, तो आपको भगवान याद आएंगे. अब भगवान किसी ने देखे नहीं है, तो चलो ज्योतिषी के पास. अब ज्योतिषी को बोलते हैं प्रिडिक्शन करो. ज्योतिष तो प्रिडिक्शन है ही नहीं, ज्योतिष गाइडेंस है. आप उसको प्रिडिक्शन समझ सकते हो, वो आपकी परसेप्शन है. ज्योतिष इज प्योर गाइडेंस. ये ईश्वर की ज्योति आपको रास्ता दिखाने के लिए. आपको ये भी बता सकती है कि रास्ता कठिन है. अब आप गिरोगे कि नहीं गिरोगे, वो आप पे डिपेंड करता है. दो चीजें बता दी, अब तीसरी चीज भी बताई जाए आपको. यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू लिमिट ज्योतिष. आपके अपने कर्म भी बीच में प्रधान है. इट्स नॉट इवन फर्स्ट एड, इट इज मेकिंग यू स्ट्रॉन्ग दैट यू डोंट इवन नीड एनी एड. दैट्स इट. फर्स्ट एड तो यू कैन डू इट योरसेल्फ.
इसीलिए कर्म प्रधान भी है जीवन। मैं बोल दूं आपकी लॉटरी लगेगी, आपको ये दशा आपकी बहुत अच्छी और आप घर बैठ जाओ, सुबह 11 बजे उठो, शाम को 4 बजे नहाओ, 6 बजे नहा धो के क्लब निकल जाओ, पी के रात को 2-2:30 बजे घर आओ, कैसे दशा अच्छी होगी आपकी? कैसे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ऐसे बेकार ज्योतिषियों ने ज्योतिष का नाम खराब किया। प्रिडिक्शन, व्हाट इज प्रिडिक्शन? नथिंग इज प्रिडिक्शन, इट इज गाइडेंस। ज्योतिष इज गाइडेंस, प्योर गाइडेंस। सारे शास्त्र हमें गाइड करते हैं, सारे वेद हमें गाइड करते हैं। अब आप बोलो जी भागवत गीता प्रिडिक्ट करती है कि जो अच्छा करेगा उसके साथ अच्छा होगा, जो बुरा करेगा उसके बुरा। ये कैसी प्रिडिक्शन हुई? ये गाइडेंस है। आप इस लड़के के साथ शादी मत करो, आपका नुकसान हो सकता है। ये कौन सी प्रिडिक्शन हुई? ये गाइडेंस है। आपकी 7.5 चल रही है, आप जॉब मत चेंज करो। ये कौन सी प्रिडिक्शन हुई? ये गाइडेंस है। और गाइडेंस ही चाहिए होती है, एक केपेबल इंसान को सिर्फ गाइडेंस की जरूरत होती है। That's what guidance is all about. People say Jyotish doesn't work. Jyotish is. There are stupid astrologers who have made this prediction. As a science की ये work नहीं करती. It works. मेरा पहला सवाल है कि आप एक गरीब घर में पैदा होते हो और एक इंसान एक बहुत अमीर घर में पैदा होता है, सारी जीवन की खुशियां मिलती है, उसका क्या लॉजिक है? एक दिन के बच्चे ने अपना क्या फ्यूचर बनाया होता है? कुछ भी तो नहीं। और वो झोपड़ी में पैदा हुआ जहां पे उसको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही, दूध भी नहीं मिल रहा, कपड़े भी नहीं मिल रहे। उसने कौन सा फ्यूचर अपने हाथ से बना लिया? उसके कर्म है जो ज्योतिष में लिखे, जिसकी वजह से उसका एक झुग्गी के अंदर, झोपड़ी के अंदर जन्म हुआ है। और आपके कर्म है जिसकी वजह से आपका जन्म राजमहल में हुआ है। इसका जवाब साइंस के पास नहीं है। इसका कोई जवाब नहीं है किसी के पास, ना नासा के पास है, ना किसी साइंटिस्ट के पास है। यू अंडरस्टैंड? सो यू नीड टू बिलीव इन ज्योतिष। तीसरा ढैया आपके मन को पागल कर देता है। इतना रिस्ट्रिक्टिव आप फील करते हो कि आप ऑब्सेस्ड हो जाते हो अपनी जिंदगी से। आपको फर्क ही नहीं पड़ता दुखों से, तकलीफों से। You feel very obsessed and very, very problematic. Ladies and gentlemen, this is Saraswati. Exalted शनि और miracle degree शनि, does it bring? See, exalted शनि ये होगा ना कि आपका शनि पूरा अवेयर है कि उसको क्या करना है। और exalted शनि तभी आता है लाइफ में अगर आपने पिछले जन्म में काफी लोगों को जस्टिस दिया होता है अपने जीवन में। आपने अच्छे कर्म कुछ किए होते हैं, जस्टिफाई किया होता है चीजों को। तो इतनी सवियर नहीं जाएगी 7.5, लेकिन आपको तकलीफ तो देगी, आपको एक अच्छा इंसान बनाएगी। देखो, एक सोना, अगर आपको एक मेटल में से सोना निकालना है तो 400 डिग्री पे तो लेके जाना ही पड़ेगा, उसको तराशना पड़ेगा। ओनली देन यू विल गेट द गोल्ड। Guruji, can I share my personal experience because I had Sadesati during my 21 years. Of course. I mean, because I feel that ये बहुत close group है and it's going to be a little personal, so आप please YouTube पे मत डालना। नहीं, फिर आप अभी मत करो, इसको मत करो क्योंकि ये YouTube पे जानी है वीडियो, तो इसको मत करो। फिर अब ऐसा करेंगे ना, सुबह मैंने 7.5 और ढैया एक्सप्लेन करना। ढैया एक अलग चीज है, चतुर्थ और अष्टम ढैया और 7.5, तो फिर आप मॉर्निंग में एक्सप्लेन करना। ओके गुरुजी। आशीष, you want to say something? यस गुरुजी, वो म्यूट पे था। तो एक रियलाइजेशन है मेरी, आई थिंक ये तो जर्नल रियलाइजेशन है, कुछ पर्सनल नहीं है। तो आपकी कृपा से कुछ समझ आया, आपके प्रीवियस लेक्चर्स के साथ आई कुड कनेक्ट सम डॉट्स। तो एक बात तो मेरे को ये समझ आई है कि आपने बोला था जैसे कि जब योग कारक, मतलब जब आप नैसर्गिक मेलेफिक्स पढ़ा रहे थे कि शनि जो है उसके लिए हमको कुछ उपाय करें ना करें तो बेहतर ही है, क्योंकि कुछ फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है। आई थिंक वो रिलेटेबल इसलिए क्योंकि वो हमको अपने हमारे कर्मों का ये डू जस्टिस। तो अब कोई जस्टिस करने वाला कोई व्यक्ति है तो वो इन्फ्लुएंस क्यों होगा किसी भी चीज से? तो जस्टिस हैज टू बी कोल्ड। एक तो ये चीज, एंड दूसरी चीज आई थिंक आपने जैसे 7.5 समझाया, सो आई थिंक वन ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग बिहेवियरल वे ऑफ डीलिंग विद 7.5 की
जो कर्म होंगे या कुछ डिजायर्स होंगी भी उससे बस होने दें, लाइक बीइंग वेरी डिटैच्ड या फिर सरेंडर फॉर्म में वाया प्रेयर्स और एवरीथिंग, जैसे जिसे कर्म योग बोलते हैं, भक्ति योग बोलते हैं, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते, हमको अपने पास्ट लाइफ के कर्मास को ही डील करना है, बस अवेयर रह सकते हैं एंड जितना ज़्यादा डिटैच हो सकते हैं सर्कमस्टेंसेस से, that is an remedy in itself. ये मेरे को थोड़ा समझ आया था, Absolutely. I thought See, of it is sharing. like, I'll tell you how. You know what? Suppose it is raining outside. अब मान लो अभी बाहर इतनी ठंड है, ठीक है, 4 डिग्री है, हवा तेज चल रही है. आप मेरा रूप देखो. I'm wearing a cap. Okay, I'm wearing 2, 3, 4, 5, 6 layers. A heater is close by. Don't you think these are remedies? You know, these are remedies. I'm trying to make myself stronger. I'm in my heat. I'm taking good diet, right? अब आप इसको रेमेडीज भी कह सकते हो, अकल भी कह सकते हो, और ज्योतिष क्या है, वो बता रहा है कि शीतलहर है बाहर. अब प्रिडिक्शन करो जी कितने डिग्री होगा. ज्योतिष बोलता है 8 डिग्री होगा, बाहर 4 डिग्री है. इट इज रिगार्डलेस, इट इज कोल्ड, दैट्स इट. टाइम पीरियड इज गुड और बैड, यू हैव, सी इन दी शनि साढ़े what is most important thing is that you become avid devotee of Shri Ram and Hanuman. That will, this is Hanuman, this is Shri Ram. जितनी ठंड है बाहर, right? So ये जो मंत्र हैं, they become like a layer, it's like a shield. तो वो आपको इफेक्ट नहीं करते हैं. Okay? Yes, नित्य जी. So, Guruji, from what I could gather is that irrespective of the placement of Saturn in our horoscope and irrespective of the dashas, so this Sadasati period of 7.5 years will be painful for all the natives. See, whenever you are trying to improve your life, whenever you're trying to improve quality of life, उसमें hard work और pain तो होती है. As I said, either you take that pain, right? You feel it or you don't feel it. But definitely when the Sadasati comes, you know, मान लीजिए अगर आपको promotion भी मिल गया साढ़े में, promotion का मतलब क्या है? Add on responsibility, right? More hard work, more working hours, more responsibility, more accountability, you know. So you're happy that you got the promotion, but you are going to be tired. You know, वही promotion जो है आपको 1 महीना अच्छी लगती है, 6 महीने बाद कहते हैं यार बहुत काम है यार, oh my God, मेरा हाइक तो सिर्फ 20-30% हुआ, लेकिन मेरे से काम तो ये 120% का ले रहे हैं. You understand? I mean, 24 hours I'm not enjoying. I mean, I can't give time to my children, my wife. I'm losing my health and my everything is going. कभी ना कभी 2-3 साल में एक मन में आता है to hell with such promotion यार. पैसे कम ही अच्छे थे लेकिन enjoyment तो पूरी थी ना. You understand? But Guruji, if you look at today's world, at least in the corporate world, I think the other team members will agree with me. Beyond 2 to 3 years, I think nobody can stay in one job. Gone are those days where we were loyal, working for 10 years in the same company. Though 3 साल में तो either we change our jobs or the employer will create such a situation that we have to change. Because you said it's honey trap during Sadasati. So it's a quite tricky situation. It is tricky. It is a tricky situation. That is why people are suffering in Kali Yuga. Lot of suffering is there. Lot of instability is there. और जिनकी लाइफ स्टेबल रहती है वो 10-10 साल 15-15 साल एक कंपनी में गुजारते हैं. मेरे को बहुत क्लाइंट मिलते हैं जो कह रहे हैं मैंने 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, 8 साल हो गए इस कंपनी में एंड थिंग्स आर स्टिल स्मूथ. And the only remedy is to There are Hanuman other Chalisa remedies that and- I'll discuss in the morning. There are other nakshatra based remedies also which I'll be discussing with you. Okay, thanks, Guruji. Yes, Nandita ji. Hare Krishna, Guruji. Ji, Hare Krishna. Well, pardon me, but my question may sound very foolish, but I No, really just yeah. want to be very, very sure about this. So let's say my moon is in Libra. That means my Sadesati began when the Saturn started transiting in Virgo, then Libra, and then when Scorpio. Saturn finally leaves Scorpio is when my Sadesati ends. Is that right? Exactly. Absolutely right. Thank you. Yeah, thank you.
Yes, Parul. Guruji, my question is more around like for the kids who are born during Saraswati, what kind of like a karmic baggage do they bring in? Like, what is the Health karmic baggage. settlement? Health. You know, people born in Saraswati suffer in health. उनका ना जो कार्मिक सेटलमेंट, देखो एक बच्चे को पेन कैसे मिलेगी? बच्चे को पेन मिल सकती है कि उसकी एजुकेशन डिले हो जाए। वो किस किस वजह से डिले होगी? हेल्थ की वजह से होगी या पेरेंट्स की प्रॉब्लम की वजह से होगी, राइट? तो जब आप सरस्वती में पैदा होते हो, सबसे पहले आपकी हेल्थ खराब होती है। आप देखना कितने लोग हैं जो सरस्वती में पैदा हुए हैं, उनसे पूछना आपके बचपन के पहले 5-7 साल कैसे थे? गुरुजी मैं बहुत बीमार रहा, बहुत हॉस्पिटलाइजेशन हुई, यू नो, बहुत दिक्कतें थी, फिर स्कूल लेट हो गए थे, मैं बोलना लेट सीखा, चलना लेट सीखा, और अगर चल पड़े जल्दी तो गिरना, बहुत बहुत गिरे, बहुत प्रॉब्लम्स आई। सो ऑल दिस फिजिकल पेन, कर्मा रिलेटेड टू एक एक चाइल्ड के लाइफ में जो पेन्स होती हैं, वो आपको जन्म के समय की साढ़े देती है। गुरुजी, फिर अगर हम इसी एस्पेक्ट पे देखें तो लाइक एज अ चाइल्ड यू डोंट नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट? लाइक इवन इफ यू कैन नॉट स्पीक, यू डोंट नो। वो जो पेन है वो पेरेंट्स को ज्यादा फील होती है। सो वुड दैट आल्सो बी लाइक बिल्कुल, जब आप पेरेंट्स बॉर्न ने हो कुछ रहे हो ना इन अ कुछ ऐसा किया, साढ़े बिल्कुल Yeah, बिल्कुल। yeah, because I was born in Saraswati. I mean, मेरा moon is just a house before Saturn. जी So then मेरे born होते ही my dad met with a big accident wherein देखो, उनको पता ही नहीं था कि वो जिंदा भी, मम्मी को पता ही नहीं था कि वो हैं कहाँ, जिंदा है मर गए कहाँ गए पता नहीं। 4 दिन तक तो ढूंढ रहे हैं लोग उनको। So that is the amount of like, and then for first couple of years of my dad, like my dad was always like he had a brain hemorrhage and he did not remember my mom or me. So वो जो चीज है ना वो साढ़े में, I mean again मैं चलना अच्छा, आपका जन्म नक्षत्र केतु या मरकरी का तो नहीं है? जन्म नक्षत्र केतु का है हाँ, तो वो क्योंकि गंड my मूल है ना। moon is आप in, हाँ, इसमें my साढ़े से moon भी is ज्यादा इम्पैक्ट देखो, जब पेरेंट्स को इम्पैक्ट आता है ना किसी के जन्म लेते, तो वो साढ़े से ज्यादा गंडमूल का होता है। सो गंडमूल के नक्षत्र कौन से हैं? केतु या मरकरी। अगर कोई केतु के नक्षत्र में या बुध के नक्षत्र में पैदा हुआ है, उस बच्चे के जन्म के बाद पेरेंट्स, चाचा, मामा, ताया, उनकी लाइफ में जबरदस्त प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। yeah, I'm a गंडमूल kid क्योंकि मैं उसमें सन was in गंडमूल and संक्रांति 0 डिग्री and फादर सफरिंग। और हाँ वही, सो वो देखो गंडांता भी हो गया वो। अब आप इसको राहु बोलो is in कि the ninth ज्योतिष house. वर्क नहीं करता या ज्योतिष काम नहीं करता, तो इट इज नॉनसेंस। नो, ज्योतिष, सी हाउ क्लियर इज द ज्योतिष। अब इन्होंने तो नहीं बताया ना गंडमूल में, मैं इनको बोल रहा हूँ कि गंडमूल में होगा, बोला हाँ मैं केतु के नक्षत्र में पैदा हुई, इट विल गिव सफरिंग टू फादर। एंड Yeah, my सूर्य son इज is एट in 0 Mira डिग्री। Nakshatra, which is Ketu. वो तो उनकी अपनी लॉन्जिविटी अच्छी होगी कि बच गए, नहीं तो इट वुड हैव हिट हिज लॉन्जिविटी। He was running था, I think during that time राहु की महादशा he was running. तो उनको जितना पैसा आ रहा था he was alcoholic, तो उनको उसमें लगा रहे थे। So he was there to enjoy his life. यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम। चलो जी, विवेक जी। Yeah, Hare Krishna Guruji. जी हरे कृष्णा। So Guruji, my question is a little bit technical here based on the degree of moon. So let's say the degree of moon is 1 degree, 2 degree in Aquarius. So then the Sadhasati will start with Capricorn or it will start before that? देखिए, मान लीजिए मेरा चंद्रमा 1 डिग्री में, ठीक है, और 1 डिग्री में स्कॉर्पियो में। द मोमेंट Saturn will enter Libra from 0 डिग्री से साढ़े स्टार्ट, ओके। लेकिन लिब्रा के अंदर, स्कॉर्पियो के अंदर और सेजिटेरियस के अंदर जब शनि की डिग्री और मेरे चंद्र की डिग्री सेम होगी ना, वहां पे जबरदस्त इवेंट्स होंगे, क्योंकि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सेम हो गया। समझ लो, लॉन्गिट्यूड सेम हो गया ना, ठीक है। सो जब आपकी लाइफ में मान लो चंद्रमा 10 डिग्री पे है या 12 डिग्री पे है, तो जब इन तीनों राशियों में शनि एक घर पहले, उसके ऊपर और एक घर आगे, एग्जैक्टली उस डिग्री में होगा ना, 10 डिग्री में जिसमें आपका चंद्रमा है, वहां पर मेजर इवेंट्स होंगे साढ़े। Okay, got it.
And just to add your Anmol point, I am also Anmol. My Janam Nakshatra is Revati, and when I was born, my father faced huge losses in the business. देखो, So just to relate the thing. yeah, this is there, this is there, this is there. Vijay is saying, Hare Krishna Guruji, are the Sadhasati impacts less after certain age like middle? Yes, of course. The second cycle of Sadhasati is less. The third cycle is even less because वो आपके ना मैक्सिमम कर्म एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं. सो जो पहली Sadhasati है वो बहुत डेडली होती है. सेकंड तो बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि वो प्राइम एज में आती है बहुत से लोगों के. थर्ड Sadhasati इतनी नहीं होती है, फर्स्ट Sadhasati बहुत से लोगों के बचपन में निकलती है, टीन एज में निकलती है, राइट. तो सेकंड Sadhasati में क्या होता है, बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, चिल्ड्रन आर ग्रोन, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और उस समय में आप फंसना नहीं चाहते हो. जब उस समय फंस जाते हो तो बहुत दिक्कत होती है. और तीसरी जो Sadhasati है वो आपके हेल्थ पे ज्यादा इम्पैक्ट डालती है क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो चुकी होती हैं. We have learned the lessons and now how to handle it. Second and third, little tight. Just become an avid devotee of Shri Ram. आंखें बंद करके राम 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 करते जाओ, एकदम स्मूथली टाइम निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी. Guruji, I had just one more query. हम्म, So I was reading somewhere and I was watching something. So उसमें था कि based on your like your ascendant, क्या कहते हैं कुछ Sadhasati के मतलब they say right like the starting, the rising, the peak and the setting. These three are called as like technical terms में Sadhasati का 7.5 years को जो वो divide करते हैं. तो बोलते हैं कि based on your ascendant it depends कि तुम्हारा पीक बहुत बुरा होगा या तुम्हारा राइजिंग बहुत बुरा होगा या तुम्हारा सेटिंग बहुत बुरा होगा, वो होता है या फिर इज इट लाइक it's always the same? It was always, the way I've explained कि first आपको भटकाएगी, फिर आपके माइंड को रिस्ट्रिक्ट करेगी और फिर जो है आपके मस्तिष्क मन को आप रिस्ट्रिक्ट करेगी. अब आपने ये देखना है कि उन हाउसेस के जो डिस्पोजिटर हैं जहाँ पे शनि ट्रेवल कर रहा है उनकी क्या पोजीशन है. सो अगर एक घर पहले का डिस्पोजिटर या जिसमें चंद्रमा है उसका डिस्पोजिटर या अगले वाले ग्रह का डिस्पोजिटर, तीनों में से जो सबसे खराब सिचुएशन में है वो वाला ढैया आपका सबसे खराब जाएगा. Did you I get think it? रुचि जी ने भी एक या गुरुजी एंड देन लाइक व्हेन दे जैसे रुचि ये जी ने सारे बोला ना कि एडवांस नेटल लेवल सैटर्न. है, ये सारे अच्छा. एडवांस लेवल्स हैं. जैसे अब जिनकी शनि वहीं पे बैठा हुआ है तो शनि डिस्पोजिटर ही है उसका, ये ऑलरेडी अपनी लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस फील कर रहे हैं. यू अंडरस्टैंड, जब से इनका जन्म हुआ है तो वहां पर इनका जो फर्स्ट ढैया है डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी वेरी स्ट्रांग वन. बहुत से कार्मिक सेटलमेंट होंगे. ये इतनी स्पिरिचुअल हो जाएंगी ना अपने फर्स्ट ढैया में कि इनकी दिन की शुरुआत शाम दोपहर रात सब मंत्र नाम सिमरन इसमें निकलेगी, देखना. आप रुचि जी की बात कर रहे हो? हाँ जी, मैं रुचि जी की बात कर रहा हूँ. अच्छा. एंड गुरुजी अगर नेटल सैटर्न के ऊपर से जो Sadhasati होती है, हाउ डू यू सी दैट? वही तो बता रहा हूँ, उनका नेटल अच्छा. सैटर्न ही फर्स्ट ढैये में आ रहा है ना. लेकिन उनका तो डिस्पोजिटर भी वही है. मैं तो ये बोल रही हूँ कि जैसे हाँ, मेरा सैटर्न एक्सॉल्टेड है लिब्रा में 29 डिग्रीज पे व्हिच इज मिरेकल इतने डिग्री स्पिरिचुअल और हो वो जाओगे आप, इतने स्पिरिचुअल हो जाओगे आप कि आप सोच भी नहीं सकते और अवेयर हो जाओगे, आपको नॉलेज आएगी, आपकी अवेयरनेस चरम सीमा पे होगी. और अवेयरनेस ज्यादा होना भी तकलीफ है, इजंट? इट इज एंड आई थिंक वो सारे के सारे जो आर born around 83 84 उनके सबके साथ ऐसे ही होगा बिकॉज़ सैटर्न इज एक्सॉल्टेड इन इट्स ओन साइन वहां पे. मैंने तो 83 84 वाले बॉर्न की सिर्फ एक चीज देखी है, पता नहीं यहाँ पे कितने लोग 83 84 बॉर्न है. 83 84 बॉर्न लोग जो है ना उनकी मैरिड लाइफ इज अ डिजास्टर. हाँ वो तो है. दैट इज बिकॉज़ वो लिब्रा में है 7th हाउस, नेचुरल 7th हाउस में अफेक्ट होता है सैटर्न का. मैं हूँ गुरुजी से आई कैन तो डेफिनेटली वाउच फॉर इट. मतलब डिजास्टर से पता है क्या, सेटिस्फेक्शन नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल सी लाइफ मिलती है उन्हें, मतलब जो उन्होंने सोचा होता है ना वो तो मिलता ही नहीं है. जो उन्होंने सोचा होता है, जो बचपन सपने होते हैं ना, मेरी मतलब एक परी से शादी होगी तो परी की जगह परा आ जाता है. Why is that, Guruji? 83, 84 में ऐसा क्या उनका जब खास उनका है? जन्म हुआ देखो शनि कहाँ था, देखो ना 83 में देखो लिब्रा में शनि कहाँ था, exalted. लिब्रा में एग्जॉल्टेड था. ठीक है ना, शुक्र की Yep. राशि में एग्जॉल्टेड था, तो उसने अपनी मैरिड लाइफ में अंकुश तो लगाना ही है.
ठीक है ना? For me, the ऐसे ऐसे saving हम grace, बहुत सी Guruji, is प्रिडिक्शंस भी that करते हैं, सिर्फ ईयर के बेसिस के ऊपर बहुत सी प्रिडिक्शंस करते हैं हम। my हाँ जी। Saturn is in Jupiter नक्षत्र में भी आ जाता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा सेविंग ग्रेस वहाँ पे है मेरे लिए। बट मैंने देखा 83, 84, all my friends are cribbing about their husbands. Yeah. All husbands are और cribbing about their 85 wives. 85 बॉर्न वाले जो लोग हैं ना, उनके जिंदगी खराब करते हैं उनके इन-लॉज। So true. ठीक है ना? गुरुजी अब सबका ही बोलना पड़ेगा आपको, किसका अच्छा, सारी रात लग जाएगी, फिर यही करेंगे। 84 का भी। वैसे भी रात को सब यही सोचने वाले हैं कि बाकी ईयर्स का क्या होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला। आपके साथ श्री राम है, हनुमान जी हैं। यस ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। वी आर ब्लेस्ड। ठीक है ना, so कुछ नहीं होगा। विजय कह रही 81 वालों का अब सबके बुलवा लो आप मेरे से। ठीक है ना, 81 वालों का तो झगड़ा होता होगा रोज पत्नी के साथ या पति के साथ, थोड़ा थोड़ा अनबन रहती होगी। ठीक है, लेकिन प्यार है, 81 वालों का प्यार हो जाता है, अंदर से लगाव हो जाता है। एनीवेज, तो यही वाणी को नित्या जी कह रही, मून इज इन लिब्रा, द एक्सॉल्टेशन साइन ऑफ सैटर्न, डज इट इम्पैक्ट ग्रेटर? ऑफ कोर्स इट डज, but then you have to check the position of Saturn and Venus, right? You have to check the position of Venus. If Venus is not well placed, it will be severe. Okay, ladies and gentlemen, that's it for today.